considerations and in the design and the selection criteria of the materials. Properties of the material can be classified. It's a broad classification of the materials. So we can classify them with respect to the chemical, physical, and the mechanical properties. But these are not the only classification available in the different literature and the texts. We can see how the materials can be classified with respect to our point of applications. Just like in this flow chart, you can see that there are three main characterizations or the classification of the properties, but one is the chemical, second one is the physical, and third one is the mechanical. Fourth one is indirectly relevant in the decision making of selection of materials. That's the procurement and the manufacturing considerations. In the same side, you can say the size, shape, textures, some sort of economics that lies in this category of the set of properties of that materials. But our focus will be the chemical, physical, and mechanical properties of the materials basically used in the engineering applications. Last time we were discussing that the material properties are important to calculate or estimate whatever the procedure you are using for the material properties. They will define the performance of the material. So from the processing to performance, the properties are more important and more specific in order to gain some certain kind of materials, naturally occurring or synthetic materials. Similarly, अगर मैं properties की बात करूं तो properties are of two different categories. One category is आप लोग क्योंकि process engineering पढ़ रहे हैं, one is the thermophysical or thermochemical properties, and the second one are the transport properties. So if we divide the properties that are relevant, these are two: the physical or thermophysical, you can say the thermodynamic properties, and the second one are the transport properties. I'll give you the example of each. The thermodynamic properties are basically the inherent characteristics of that material that can respond to or that can provide a behavior of that material with respect to any thermodynamic or any thermodynamic parameter. Just like heat capacity. Heat capacity is a thermodynamic property. So when you are you are considering the thermodynamic properties, you must see these properties are basically the physical and some sort of chemical properties, thermochemical properties are used. अगर आप thermodynamics अगर पढ़ रहे हैं तो जो thermodynamics की कुछ properties है, just like an example दी heat capacity है. Heat capacity उस material की inherent property होती है independent of shape or size of the material. That's why we use the specific heat capacity. मैं अगर example दूसरी साइड से दूं transport properties, so there are three transport phenomena that you are studying during your undergrad studies. One is the momentum transfer, second one is the heat transfer, and third one is the mass transfer. So जो momentum, heat या mass transfer की properties हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं या आपको कैलकुलेटेड मिलते हैं जिससे आप हीट ट्रांसफर या मास ट्रांसफर एस्टिमेट कर लेते हैं. जस्ट लाइक अ विस्कोसिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल. विस्कोसिटी सॉलिड्स में तो एज इट इज कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इन द लिक्विड एंड गैसेस विस्कोसिटी इज इंपॉर्टेंट. ऑन द अदर हैंड डेंसिटी जो है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं उसको. लेकिन अब विस्कोसिटी हो गई, इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी is a transport property of that material. Although they are overlapping in a sense of thermodynamics,
बेसिकली थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट होती हैं। तो अब मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग द मटेरियल प्रॉपर्टीज़, मैं अगर इसको ब्रॉड ब्रेक डाउन करूँ तो एक्चुअली दिस इज रेलिवेंट टू द मैकेनिक्स ऑफ द सॉलिड्स। तो जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो आप बेसिकली डील कर रहे हैं सॉलिड मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, तो मैकेनिक्स जो फ्लूइड मैकेनिक्स, जस्ट लाइक आपने एग्जांपल है दैट्स वन पार्ट फ्रॉम द फ्लूइड साइड। सॉलिड मैकेनिक्स लोग जो पढ़ते हैं वो ज़्यादातर मैकेनिकल के या सिविल इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, जिन्होंने मैकेनिकल डिज़ाइन या मैकेनिक्स डिज़ाइन करनी होती है किसी भी सिस्टम की। अब जब मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ इसको, मैं आगे डिटेल में आगे हैं ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली केमिकल properties are the properties that are dependent on majorly the composition of the material or the elements of the materials involved. So chemical property कोई भी होगी वो, अब इस chemical property को कई बुक्स वाले इसको kinetic properties लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये डिवाइड जो जिस तरह हो रहा है, kinetic properties, ठीक है, transport properties and then thermodynamic और physical properties। सर जी सर, दो बातें कि एक तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, दूसरा सर लेक्चर के नोट्स नहीं मिले थे पिछली दफा। चले मैं कर लेता हूँ। सर लेक्चर नोट्स कब क्या रहे बच्चे पिछली दफा नहीं थे। चले मैं ये स्लाइड्स की बात कर रहे हो या आपको बुक्स? यस सर, स्लाइड्स। चलें ये स्लाइड्स भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास असल में सीआर का कांटेक्ट भी मैंने कल लिया है आमिर साहब से, तो मेरे पास ना सीआर के ईमेल आईडी है, मुझे नहीं आइडिया कि सीआर हैं कौन। तो सीआर जो है ना लेक्चर के बाद मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो मैं उनको जो है ना या अपना ईमेल कांटेक्ट मुझसे शेयर कर देता हूँ, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओके सर, थैंक यू। सो बैकग्राउंड बताने का मकसद सिर्फ ये था कि प्रॉपर्टीज़ को अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो कैटेगरीज जो हैं वो किसी स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे हैं। जस्ट लाइक मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो काइनेटिक्स बेस्ड होंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील, ये दो डिफरेंट, अगर आप उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है और इनकी परफॉर्मेंसेस डिफरेंट। तो जब अलॉय एक ही मेटल की अलॉय बना दी जाती है तो वो अलॉय जो है वो मेटल की तरह बिहेव नहीं करती, उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो जाता है। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ आयरन कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं है लेकिन स्टील कोरोजन रेजिस्टेंट है। कोरोजन इज बेसिकली अ काइनेटिक रिएक्शन, how to respond to the external environment of, you can say, moisture and other parameters. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमर्स की डिफरेंट है, पॉलीमर का ही कंपोजिट बनाए तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब मैं स्टील से एग्जांपल देता हूँ। स्टील में अगर आप कार्बन ऐड कर रहे हैं, आयरन में अगर आप कार्बन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने वो पढ़ा है कि लो कार्बन स्टील है, माइल्ड कार्बन स्टील है और हाई कार्बन स्टील है। कार्बन की कंपोजिशन चेंज करने से उसका सारा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो सारा चेंज हो जाता है और उसके सारे रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाते हैं टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज़, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, वो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो या ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ हो, वो हर तरह की प्रॉपर्टीज़ की चेंज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की चेंज करने से बाकी प्रॉपर्टीज़ पे भी इफेक्ट आता है। तो केमिकल इज़ वन कैटेगरी वेयर यू आर मिक्सिंग टू मटेरियल्स और ट्रीटिंग अ सिंगल मटेरियल डिफरेंटली, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी कि हीट ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है मटेरियल्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल का क्रिस्टलाइन साइज या ग्रेन साइज ही चेंज हो गया तो मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी।
ये डिपेंड करता है कि आपको किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो मटेरियल की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ उस मटेरियल की हैं वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब जिस तरह डेंसिटी है, ठीक है, अब इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म में ले जाएं या डेंसिटी की टर्म में ले जाएं। डेंसिटी मटेरियल की एक इंटेंसिव पैरामीटर, तो ये तो आप लोगों को क्लियर होगा व्हाट आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली फॉर दोज, मैं रिपीट करता हूँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो मैस, वॉल्यूम या नंबर डिपेंडेंट होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव से याद रख लेना शुरू के IN से, दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, वेट या मास या नंबर, जिसके रिस्पेक्ट से आप वो मटेरियल ले रहे हैं। मैं एग्जांपल दूं डेंसिटी की। सो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डज इट मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव मीन्स वाटर की, फॉर एग्जांपल वाटर की डेंसिटी जो है, आप समंदर में से एक गिलास वाटर ले लें उसकी भी वही होगी, ठीक है। एक पूल वाटर ले लें उसकी भी उतनी होगी, पूरे समंदर के वाटर ले लें उसकी भी उतनी होगी। तो डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव पैरामीटर है, ठीक है। जबकि वॉल्यूम या मास, ये जो प्रॉपर्टी है किसी लिक्विड की या गैस की या सॉलिड की, ये तो साइज और मास डिपेंडेंट है। तो हम ज़्यादातर इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टीज़ को अगर वो एक्सटेंसिव है भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक फिर बात होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट है। सो लेकिन हम उसको स्पेसिफिक हीट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि उसको इंटेंसिव बनाया जाता है। whenever you go to find out some properties from any handbook or from any literature, वो मेजरली जो कंपैरिजन करते हैं तो वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंटेंसिव ही कंपेयर हो सकती है, एक्सटेंसिव कंपेयर नहीं हो सकती। तो ये प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी अगर जो आप पढ़ेंगे, या तो ये इंडिपेंडेंट होंगी या इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा किसी भी मटेरियल के लिए। मैंने आपको फिर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको बता दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिवाइड होती हैं मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स की, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, जिसको यहाँ वो केमिकल कह रहा है। सेकंड वन केमिकल के, अगर मैं कंपैरिजन में कहूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें मेजरली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो थर्ड वन वो है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़। तो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ में वही मोमेंटम, हीट और मास ट्रांसफर रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसमें सिंपलेस्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल किसी भी, अब ये एक जनरल फार्मूला है कि फ्लक्स और द ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग, रेट ऑफ ट्रांसफर एनीथिंग इज directly proportional to the driving force. When it becomes an equation, there is a constant of proportionality. Flux is equal to constant multiplied by driving force. Just like Fourier's law of heat conduction. So Fourier law of heat conduction क्या कहता है कि heat flux is directly proportional to temperature gradient, temperature difference जिसे आप कहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सेम टेम्परेचर डिफरेंस दें लेकिन मटेरियल्स को चेंज कर दें तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जितनी भी आपके लॉज या इक्वेशंस आएंगी उनमें मेजरली जो है ना वो एक कांस्टेंट आता है जिसको, ठीक है, वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें एग्जांपल दिए ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज में विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मास डिफ्यूजिविटी, इसमें थर्मल डिफ्यूजिविटी भी है। तो वो ये सारी की सारी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी हैं जिसकी बेस पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है। अब सेकंड कैटेगरी अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं जो ट्रांसपोर्ट की नहीं है, वो उस मटेरियल की रिटेनिंग प्रॉपर्टी है। अब मैं इधर से एग्जांपल देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी ये वो प्रॉपर्टी है कि मटेरियल के अंदर से हीट किस तरह ट्रांसफ़र होगी।
ठीक है। अब जिस तरह थर्मल कंडक्टर्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है, तो हीट ट्रांसफर रेट्स बहुत हाई हैं। लेकिन अगर इंसुलेटर है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है, नो मैटर हाउ मच ड्राइविंग फोर्स यू आर प्रोवाइडिंग। अब वो कंडक्टर है तो वो इंसुलेटर है तो वो हीट को या तो ट्रांसफर नहीं करेगा आइडियली, लेकिन करेगा तो बहुत स्लो रेट से करेगा। इसके कंपैरिजन में हीट कैपेसिटी क्या है? हीट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी। हीट कैपेसिटी इज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द हीट एनर्जी इन द मटेरियल। अब ये दोनों चीज़ें एक ही मटेरियल के अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों किस रिस्पेक्ट से डिफरेंट है? एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से डिफरेंट है। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल आपने अगर हीट ट्रांसफर पढ़ लिया तो आपको हीट एक्सचेंजर्स पता होंगे। हीट एक्सचेंजर्स में हमारा गोल ये होता है कि हीट ट्रांसफर एफिशिएंट हो। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं किसी और गोल की बात करूं, हीट कैपेसिटी के रिस्पेक्ट से गोल की बात करूं, तो कई एप्लीकेशन होती हैं जिसमें आपने हीट को स्टोर करना होता है मटेरियल के अंदर। एंड अब फॉर एग्जांपल हीट ट्रांसफर में अगर हीट एक्सचेंजर की टाइप्स आपने पढ़ी हैं तो एक रीजनरेटर होते हैं, एक रिकपरेटर्स होते हैं। तो रीजनरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आप हीट एक जगह स्टोर कर लेते हैं, जस्ट लाइक द बैटरीज। आपने चार्ज या एनर्जी स्टोर कर ली और जब ज़रूरत हुई उसको यूज़ कर लिया। तो एडिशनल हीट को भी एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। और फिर अब हीट ट्रांसपोर्ट में थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल विल बी मे बी हायर और लोअर, बट थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना वो आपको एफिशिएंट हीट ट्रांसफर में वो शो करेगी। इसी तरह if you are transferring the heat between the two solid materials या एक सॉलिड एक लिक्विड मटेरियल है, अगर तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? हीट कैपेसिटी के रिस्पेक्ट से वो हीट, लेकिन जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो उतनी देर से या तो कूल होगा या वो उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतने ज़्यादा टाइम पे वो अपनी हीट रिलीज़ कर सकता है। अब मेटल्स हैं, इनकी हीट कैपेसिटी कंपैरेटिवली लोअर होती है, क्योंकि ये जितनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करते हैं उतनी जल्दी हीट रिलीज़ भी कर देते हैं। जितनी जल्दी ये गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। आपने डेली लाइफ से एग्जांपल्स अगर आपने देखे तो अपने घर के अंदर देखें, तो मेटल जो होगी वो जितनी जल्दी हीटअप होगी उतनी जल्दी कूल डाउन भी होगी। लेकिन जस्ट लाइक अ ब्रिक मटेरियल, एक ईंट है, ठीक है, उसको आप हीटअप करेंगे, वो हीट कंटेन जब करेगी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुँचने में, लेकिन उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो हीट रिलीज़ करने में भी उतना टाइम ज़्यादा लगाएगी। तो ये एक जिसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचर है हर रिस्पेक्ट से। जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी मैं मटेरियल को छोड़ के एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिसका नॉलेज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी का रेट ज़्यादा होता है, उसका भूलने का रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो किसी के पास वो कहते हैं ना, जितनी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से दौलत आती है ना तो उसी स्पीड से चली भी जाती है। तो ये लॉ ऑफ नेचर है। अब यहाँ पर हीट की बात कर लें, ठीक है, इलेक्ट्रिक की बात कर लें, मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर लें, तो जितनी जल्दी कोई मैग्नेटाइज होता है उतनी जल्दी वो मैग्नेटाइजेशन लूज भी करता है। तो ये मटेरियल्स, अब इसमें ये चीज़ एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से कई दफ़ा यूज़फुल भी होती है, कई दफ़ा ये हमारे जो है किसी यूज़ की नहीं होती। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी मटेरियल सिलेक्शन में देखना है तो मटेरियल सिलेक्शन में डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर आपने सारी चीज़ें काउंट करनी है। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, अब सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, लेकिन सिल्वर को हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस एज वेल। क्योंकि पहली चीज़ अगर वो आप काउंट करें तो सिल्वर इज एक्सपेंसिव। कॉपर की बात कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनमें सिल्वर और कॉपर दो ही वाइंडिंग्स जिसे कहते हैं कि रिलायबल होते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कम होती है।
लेकिन कॉपर को प्रेफर किया था ओवर सिल्वर, क्योंकि सिल्वर टेम्परेचर रेजिस्टेंट ज़्यादा नहीं होता, तो वो अगर हीटअप हो जाए तो वो मेल्ट डाउन हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी कंसिडरेशन है जिनको आपने जहन में रखना है। स्टार्टिंग विद द थर्मल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमारी जो फोकस है वो मेनली थर्मल प्रॉपर्टीज़ पे है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे है, एंड थर्ड वन स्मॉल पोर्शन इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेनली हमारा थर्मल और जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे हमने जो है ना वो डिटेल इन डेप्थ स्टडी करना है। अब थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जो मेन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कहाँ पे है, ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो मैंने लिखी हैं। थर्मल एक्सपेंशन, अब जितने मटेरियल्स भी हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं वो थर्मली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द टेम्परेचर अप्लाइड। अगर टेम्परेचर अप्लाइड के रिस्पेक्ट से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है तो ये थर्मल एक्सपेंशन है। अगर मैकेनिकल फोर्स के रिस्पेक्ट से है तो वो ठीक है, वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आएंगी, वो स्ट्रेंथ डिफाइन करती है उस मटेरियल की। सो थर्मल एक्सपेंशन इज बेसिकली इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सपेंशन कैलकुलेट की जाती है। वन इज अ लीनियर, सेकंड सरफेस एंड थर्ड वन इज अ वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मींस इट्स यस। सर कोई बच्चा बार बार रिमूव कर रहा है। एक मिनट, ओके। यस, थर्मल एक्सपेंशन में बात हो रही थी कि 3 डिफरेंट एक्सपेंशंस डायमेंशन वाइज हैं। वन इज द लीनियर डायमेंशन, सेकंड वन इज द सरफेस डायमेंशन। सरफेस डायमेंशन में देयर आर ओनली 2 डायमेंशंस कि वो सरफेस। अब ये डायमेंशंस जो बात हो रही है ये 3x y एंड z डायमेंशंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो लीनियर डायमेंशन में एक्सपेंड हो रहा है तो दैट्स लीनियर एक्सपेंशन, और उसका सिंपल फार्मूला जो है वो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। अब ये जो थर्मल एक्सपेंशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। सो अब ये टू इस सरफेस और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी इसी तरह चेंज इन सरफेस एरिया और चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज, बट द डिफरेंस इज the constant of proportionality, that's the coefficient of expansion. So coefficient of expansion for the linear change is different, for the surface and the volume changes are different. So coefficient of linear expansion is basically the measure of amount by which unit length of the material expands when its temperature is raised by 1 degree centigrade. Actually जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना तो ये अल्फा एल जो है ये इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सो विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टेम्परेचर व्हाट विल बी द चेंज इन द रेशियो ऑफ द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरह सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो कोएफिशिएंट होते हैं वो भी इसी तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इसमें एक चीज़, many times these
expansion factors or the coefficients of expansion, they are also a function of driving force. ये जो टेम्परेचर है ये इसका फंक्शन भी होते हैं, सॉरी ये जो फैक्टर्स हैं ये टेम्परेचर का फंक्शन भी हैं. तो जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आयरन रॉड है, आयरन रॉड 25 से अगर आप 100 पे लेके जाते हैं तो उसका एक्सपेंशन फैक्टर कुछ और होगा. 25 से 100 75 डिग्री का चेंज, और अगर आप उसको 525 से 600 पे लेके जाते हैं तो एक्सपेंशन फैक्टर डिफरेंट होगा. तो ये कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि हर कंडीशन पे कांस्टेंट है, ये इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है. तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. जिस तरह आपने फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में जो थर्मल कंडक्शन पढ़ी थी, थर्मल कंडक्टिविटी K is a constant. It doesn't mean it's constant for a long range of temperature. तो वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी का कांस्टेंट है जिसको उसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं. ये प्रॉपर्टी है और ये फंक्शन है किसी भी ड्राइविंग फोर्स का. तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये चेंज होगा तो लीनियर एक्सपेंशन जो है वो आपको डिफरेंट वैल्यू देगी. तो ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है. ठीक है. सो अब मैं इस एग्जांपल दूसरी साइड से जो हीट कैपेसिटी है या डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, ये भी आप कहेंगे एक मटेरियल के लिए एक होती है, एक नहीं होती. ठीक है. तो वाटर की डेंसिटी है, इसलिए हम इंजीनियरिंग टर्म, अगर आप तो FSC लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपने तो एक ही वैल्यू पढ़ी होगी, लेकिन जब भी आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जब आपने कोई प्रॉपर्टी बतानी है तो बताना है कि उसका टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर और प्रेशर क्या था. ठीक है. तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm, दे आर डिफरेंट. इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड मटेरियल्स की होती हैं ये भी डिफरेंट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स. तो ये चीज़ जो है ना वो आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि आप फाइनल ईयर में जब जाएंगे तो आपने एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट करना है. डिज़ाइन प्रोजेक्ट में मेन लोग गलती ये करते हैं कि प्रॉपर्टी को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं. आप अभी भी जितने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते होंगे उसमें सबसे पहली अजम्पशन ये लेते हैं कि ओवर दिस टेम्परेचर रेंज और ओवर दिस प्रेशर रेंज हमारी ये प्रॉपर्टी, हमारी डेंसिटी या हीट कैपेसिटी दैट इज़ कांस्टेंट. इन द रियल वर्ल्ड एक्चुअल सिचुएशन में ये कांस्टेंट नहीं होती. इधर कोई कंफ्यूजन मुझे साथ साथ क्लियर करते जाना, कंफ्यूजन अगर है तो. थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ थर्मल कंडक्टिविटी इज, सर वो जो स्मॉल रेंज के लिए आपने बताया वो जरा स्मॉल रेंज के लिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे. सर जो आपने कहा था कि जो वो चीज रिपीट कर देते हैं. मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी, बहुत कट रही है आवाज़. मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ. मैंने सिर्फ ये सुना है कि रिपीट करते हैं सर. तो ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़, जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये हम इक्वेशन में तो कहते हैं कि कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल अब मैं इसको, मैंने अभी पहले भी बताया कि ये फ्लक्स, तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, इसका ये हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मटेरियल की जब किसी भी कंडीशन के लिए वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. एक मटेरियल के लिए भी वो जो प्रॉपर्टी है हो सकता है वो ड्राइविंग फोर्स चेंज होने से वो चेंज हो जाए. थर्मल एक्सपेंशन में मैंने ये बात की है कि ये थर्मल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है. एक मटेरियल कितना एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है विद टेम्परेचर. ठीक है. अब लोअर टेम्परेचर के लिए हो सकता है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो, हायर टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो. फॉर द सेम टेम्परेचर रेंज, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री का चेंज है, अगर वो 25 डिग्री का चेंज 50 to 75 है और वो 550 to 575 है डिग्री सेंटीग्रेड, तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज ये प्रॉपर्टी
अब मैं इसकी यहाँ से जो इसने डेफिनेशन लिखी हुई है ना, measure of amount by which a unit length of the material expands when its temperature is raised by 1 degree centigrade. अब इसका क्या मतलब है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एक चेंज आती है किसी मटेरियल में तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी, जो उसकी यूनिट लेंथ का जो चेंज है वो डिफाइन करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। अब ये 1 डिग्री का चेंज अगर वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो क्या वो यूनिट लेंथ में चेंज सेम होगा? और अगर वो 25 टू 26 है तो क्या वो चेंज सेम होगा? इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में रिड्यूस प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, अब रिड्यूस प्रॉपर्टीज में क्या वो क्रिटिकल प्रॉपर्टी से डिवाइड क्यों करते हैं? वो इसे करते हैं कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर वो तमाम गैसेस जो है ना सिमिलर बिहेव करती हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बनाने का मकसद ये था कि उसकी डिपेंडेंसी को शो किया जाए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से डिफाइन करेंगे तो आपको लगेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट से जो चेंज आएगी वो उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। अब ये LF माइनस LO मीन जो चेंज आई है सेम टेम्परेचर चेंज के लिए हो सकता है ये चेंज डिफरेंट हो एक ही मटेरियल के अंदर। रीज़न उसकी ये है कि 50 टू 51 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो चेंज और होगी लेंथ में चेंज, और वो 550 टू 551 और चेंज और होगी। नो मैटर हाउ स्मॉल द क्वांटिटी इज, उसका मैग्नीट्यूड जितना मर्जी स्मॉल हो लेकिन चेंज होगी। इसी तरह अब थर्मल कंडक्टिविटी में मैं आगे एग्जांपल देता, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। इस एक्चुअली ये भी थर्मल कंडक्टिविटी, अगर इसको आप फ्लक्स बना लें, थर्मल कंडक्टिविटी दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस वन इज डेल्टा टी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू होल लेंथ डेल्टा टी, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज Q इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं हीट कंटेन कैपेसिटी वाली, तो Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी आप लोग पढ़ते हैं। M जो Cp है ना, Cp हीट कैपेसिटी एक मटेरियल की एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट, एक टेम्परेचर चेंज के लिए कांस्टेंट अज्यूम की जा सकती है, वो पूरी टेम्परेचर रेंज के लिए कांस्टेंट नहीं होती। एक्चुअली आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली असम्पशन, ठीक है, हीट कैपेसिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। वो इसलिए करते हैं कि ताकि आप पहले बता दें कि दिस इज असम्पशन, और इस असम्पशन की बेस पे हमने कैलकुलेशन की है। तो यही मैं बात करूँ, थर्मल कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर का फंक्शन है, हीट कैपेसिटी भी टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ही मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा टी अक्रॉस, डेल्टा टी भी सेम है, डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल एक साइड पे टेम्परेचर 100 है, एक साइड पे 50 है, हीट ट्रांसफर हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू और होगी, और एक टेम्परेचर में 550 और 600 है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। इन अ सम ऑफ हीट ट्रांसफर सेम टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर के अक्रॉस डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडेंट के उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या dt। वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, वो होगी आपकी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है तो उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी डिफरेंट होगा, हीट कैपेसिटी का रेट भी डिफरेंट होगा। थर्मल कंडक्टिविटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी, और हीट कैपेसिटी इज रिटेनिंग द हीट एनर्जी। इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टीज, जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है, और जो दूसरी है वो उसकी फिजिकल या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हायर होती है, सिरेमिक्स और पॉलीमर्स ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, मीन्स इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो जहाँ पर भी आपने हीट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एप्लीकेशन चाहिए होगी वहाँ पर आप सिर्फ मेटल्स या मेटल अलॉयज यूज़ करेंगे। तो हीट ट्रांसफर की जितनी एप्लीकेशन आपकी इसमें है, हीट एक्सचेंजर्स में, हीट एक्सचेंजर्स किसी भी टाइप के हो, हीट एक्सचेंजर आपने
जब भी डिज़ाइन करने हैं तो उसका मटेरियल सिलेक्शन जो है ना वो में आप मेटल्स डिफाइन करेंगे। प्योर मेटल्स तो अब नहीं यूज़ होती, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं इतनी अच्छी होती, लेकिन जो है वो मेटल की अलॉयज जो है वो ही यूज़ होंगी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मैंने बताया कि ये एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की। हीट कैपेसिटी की जो जनरल एग्जांपल है ना, हीट कैपेसिटी गैसेस की भी होती है, लिक्विड्स की भी होती है और सॉलिड्स की भी होती है। इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स आपने देखा होगा सिरेमिक्स जो है इनकी हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है। सिमिलरली वही Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T के रिस्पेक्ट से C को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो C चेंज इन हीट ट्रांसफर और द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज। इसको इंटेंसिव बनाने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक हीट एनर्जी। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट mass of a substance through 1 degree centigrade. So heat capacity एक डिग्री टेम्परेचर राइज करने के राइज पे एक डिग्री टेम्परेचर राइज पे यूनिट मास की जो हीट होगी वो हीट कैपेसिटी होगी। अब इधर भी वो सिमिलर बात आती है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल मटेरियल विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो नो मैटर कि वो यूनिट मास है और वो सिंगल यूनिट डिग्री में आ रही। एक और टर्म यूज होती है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल्स, लिक्विड्स और गैसेस के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ना वो फेस चेंज टेम्परेचर होता है, लेकिन ट्रांजिशन टेम्परेचर जो सॉलिड्स में होता है वो डिफरेंट होता है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर वेयर द फिजिकल चेंज no matter micro or macro change occurs within the material. More specifically जब मटेरियल्स को हीट देते हैं ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके अगर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो उसके क्रिस्टल्स के अंदर अगर उसका एटॉमिक या सब एटॉमिक बात करें तो उसके स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ्स, ठीक है, उनके एटॉमिक डिस्टेंसेस वो वेरी कर रहे हैं। तो सो हर मटेरियल का, अब ये मटेरियल की एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह एक ट्रिपल पॉइंट होता है तो वो एक ही टेम्परेचर होता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर भी ये एक ही टेम्परेचर होता है किसी एक मटेरियल के, जहाँ जाकर उसकी प्रॉपर्टी वेरी कर जाती है, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज चेंज होगी। ट्रांजिशन टेम्परेचर में दो एक्सट्रीम कंडीशंस जो मटेरियल की काउंट होती हैं वो मेनली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन सॉलिड्स के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग विदाउट बॉइलिंग भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फेस चेंज ऑफ अ सॉलिड मटेरियल doesn't mean there is a change in the state. Phase change, मैं रिपीट कर रहा हूँ, phase change of a solid material doesn't mean state change, ठीक है। वो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में जा रहा है, दिस इज द स्टेट। वो स्टेट चेंज ही फेस चेंज नहीं होता सॉलिड्स के अंदर। फेस चेंज, अब सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट फेजेस। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम को हीट दी, वो अपनी क्रिस्टलिनिटी लूज करता हुआ अमॉर्फस की तरफ चला गया विदाउट चेंज इन एनी स्टेट, है सॉलिड ही। तो क्या हुआ कि वो मटेरियल अपना स्ट्रक्चर लूज करके अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन की तरफ भी जा सकता है, नो मैटर केस कौन सा है। लेकिन मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज एनी टेम्परेचर विद द ट्रांजिशन बिटवीन द फेजेस अकर विद इन अ सॉलिड मटेरियल। ट्रांजिशन का मतलब है कि कोई भी फेस चेंज हो रहा है। अब उसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो या फेस चेंज स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से ही आएगा। लेकिन इसको माइक्रोस्कोपली देखें तो मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन टेम्परेचर
एक सॉलिड का के लिए कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लिक्विड गैसेस के लिए डिफरेंट है। मैं यहीं तक बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें इस ट्रांजिशन टेम्परेचर को, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। किसी भी क्वेश्चन ट्रांजिशन टेम्परेचर से रिलेटेड? ओके, फिजिबिलिटी। ठीक है, फिजिबिलिटी इज द ईज ऑफ एनी materials changing its state from solid to liquid। अब जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, मटेरियल्स जितनी इजीनेस के साथ जो है ना अपने मेल्टिंग पॉइंट गेन करेंगे, वो उसकी फिजिबिलिटी है। तो हाई फिजिबिलिटी का मतलब होगा कि वो लो टेम्परेचर पे फ्यूज हो रहे हैं। अब टर्म फ्यूज, अब मैं इसको क्या जिस तरह आपने वो पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो ये टर्म भी वहीं से आई है, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गो अंडर अ फेज चेंज। तो सॉलिड जो फेज पहले फेज चेंज करेगा वो लिक्विड फेज में ही जाएगा, तो लिक्विड फेज तक ही जाता है। सॉलिड को कभी भी बहुत कम आपने देखा होगा कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक सॉलिड्स को लेके जाए, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो जितने भी प्रोसेसेस होती हैं उसमें मेल्टिंग ही ज़्यादातर यूज़ होती है, तो वो लिक्विड फेज में ही मेल्ट होते हैं जब भी दो मटेरियल। So high visibility, low temperature. Low visibility means it will fuse at high temperatures. फिजिबिलिटी की एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ देना चाह रहा हूँ। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट एग्जांपल, लेकिन आपने वेल्डिंग करते देखा होगा कभी। वो वेल्डिंग करते हुए वो जो हाई टेम्परेचर दे के वो एक मेटल की रॉड होती है उसको मेल्ट करके फ्यूज कर रहे होते हैं दूसरी मटेरियल के अंदर। तो वो टोटली फ्यूज नहीं हो रहा था, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो उसके अंदर फ्यूज हो रहा होता है। तो दो मेटल्स को आपस में फ्यूज करवाने का मतलब ये होता है कि उसको मेल्ट करवा के आपस में मिक्स करवा देना। तो वो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि वो इसलिए क्योंकि वो जो वेल्डिंग की जो आर्क होती है उसका टेम्परेचर नियर टू 1000 होता है, इसलिए वो मेल्ट हो रही होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मेल्ट नहीं हो रही होती। तो जितनी अगर वो मटेरियल वो जो एक रॉड जो यूज़ कर रहे होते हैं उसकी फिजिबिलिटी हाई होती है, ताकि वो इजीली मेल्ट होके जो है ना वो स्टिक कर जाए दूसरे मटेरियल के साथ। अगर उसकी लो फिजिबिलिटी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उसके लिए स्पेशल जो इंडस्ट्रियल ग्रेड वेल्डिंग मशीन्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। ये जो हमारे डिफरेंट एरियाज में वेल्डिंग वाले बैठे हैं वो लो फिजिबिलिटी वाले मटेरियल यूज़ भी नहीं करते। The other thing is the stability and the temperature resistance. This is the ability of the material to resist or withstand the change in temperature. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। गिलास जो है ना वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। जो कई होते हैं जो गिलास हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, और कई होते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते। ठीक है, उनमें कोई भी चीज़, कई दफ़ा होता है कि टेबल के ऊपर वो कोई भी गरम ठीक है चीज़ रख दी, वो गिलास जो है वो ब्रेक हो गया, तो वो टेम्परेचर चेंज के रिस्पेक्ट से स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई मटेरियल टेम्परेचर रेजिस्टेंट कितना है। ठीक है, तो अगर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना है तो आपको तो स्टेबल या टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल्स चाहिए। उसको लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस, अब जस्ट लाइक बॉयलर्स हैं, ठीक है, या फर्नेसेस हैं जो आपकी प्रोसेस इक्विपमेंट्स में या प्रोसेस प्लांट्स पे यूज़ होती हैं। उनमें अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर रेजिस्टेंट मटेरियल नहीं यूज़ करेंगे तो देयर विल बी एन एक्सीडेंट। वो सेफ्टी सबसे बड़ा सेफ्टी इशू है। दैट्स वाई जो हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो एक्सपेंसिव होती है, इसलिए कि उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी आप मार्केट से सिलेंडर लेने जाए ना, सिलेंडर या पाइप जो हाई प्रेशर एप्लीकेशंस या हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, उनकी प्राइस
100 टाइम्स ज़्यादा होती है दूसरे मटेरियल से। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल देने लगूँ कि वो एक मटेरियल होता है सीमलेस, ठीक है। अब उन्होंने कोई भी अगर शेप दी हुई है ना उस मटेरियल को, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर बनाया है, अब ये CNG सिलेंडर्स जो होते हैं, एग्जांपल जहन में आ गई CNG सिलेंडर्स, ये CNG सिलेंडर्स जो होते हैं इनकी सेफ्टी चेक जो होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगर किसी का चेंज होगा, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट है कि नहीं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रेशर चेंज होगा। तो क्या वो प्रेशर विद स्टैंड कर सकता है जो एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से चेंज आ सकती है। तो मैं वो एग्जांपल दे रहा था कि वो जो सिलेंडर होते हैं वो सीमलेस होते हैं। व्हाट इज सीमलेस? अब सीमलेस का मतलब होता है कोई जोड़ नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। वो सिंगल प्रोसेस में बनाए गए होते हैं, मोल्ड करके जो भी किया है उन्होंने एक सिंगल प्रोसेस के अंदर बनाया, उसके अंदर कोई जोड़ नहीं लगाया, कोई शीट लेके उसको घुमा के वेल्डिंग करके जो है ना वो सिलेंडर्स नहीं बनाए गए। जबकि दूसरे जो स्टोरेज सिंपल स्टोरेज सिलेंडर्स होते हैं जो घरों में या मार्केट्स में यूज होते हैं वो तो सारे सेम वाले होते हैं, मीन्स के जोड़दार होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए मटीरियल्स डिफरेंट है। तो सिलेंडर्स की ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन के लिए मार्केट में जाके कहेंगे ना मुझे सीमलेस पार्ट चाहिए या सीमलेस जो है ना वो स्टोरेज वेसल चाहिए, तो वो आपको उसकी प्राइस जब बताएगा तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा होगी जो सीमलेस, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको मैन्युफैक्चरिंग वो टोटली डिफरेंट है। Now go for the mechanical properties. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो सब मैं आपको सिंपलेस्ट प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करूँगा कि प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी हैं। उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टीज में वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हैं, वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है ना वो उसके रिस्पेक्ट से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के रिस्पेक्ट से हम बताएंगे कि मटेरियल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह डिफाइन होती है। ये यहाँ पर जो है ना कुछ स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, रिजिडिटी, क्रीप, फटीग, अब ये सारी की सारी चीज़ें ना एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम डेली लाइफ में जो वर्डिंग यूज़ करते हैं ना कि मटेरियल टफनेस, हार्डनेस, रिजिड, ये हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में ये तीनों चारों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो वो मैं से आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि ये चीज़ें किस तरह डिफरेंट है, उनको किस तरह डिफाइन किया जाता है, ताकि जब मैं आगे टेस्टिंग कर्व पे या आगे मटेरियल्स के बारे में जब भी एक कोई प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आपको पता हो कि मैं किस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से डिफाइन कर रहा हूँ इसको। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी मटेरियल की? किसी भी लोड को रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है ना वो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। लोड को रेजिस्ट करने की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेन एट दिस स्टेज, आई एम टॉकिंग अबाउट लोड, ठीक है। लोड, क्योंकि ये दो चीज़ें डिफरेंट है, स्ट्रेस और लोड जो है ना ये डिफरेंट चीज़ें हैं। स्ट्रेस आपने पढ़ा भी होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस की जब बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस किस तरह डिफरेंट है और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी स्ट्रेस की बात नहीं मैं कर रहा। कोई भी लोड जब भी आप किसी मटेरियल पे अप्लाई करेंगे तो उसको विद स्टैंड करने की जो एबिलिटी है ना वो उसकी स्ट्रेंथ है, विदाउट गोइंग टू द फ्रैक्चर, ठीक है। अगर वो चीज़ परमानेंटली डिस्ट्रॉयड या कोलैप्स नहीं हो रही तो वो उसको विद स्टैंड कर सकती है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैं एग्जांपल इसको आपको जनरलाइज से देता हूँ, ठीक है। मैं अभी अगर सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर आप पे लोड काम का डाल दूँ ना ज़्यादा, कुछ असाइनमेंट्स दे दूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स दे दूँ, कुछ वर्कशीट्स दे दूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे दूँ और आपको 1 वीक के अंदर सबमिट करनी है, वो जो लोड मैंने अप्लाई किया ना उसमें होगा क्या, कुछ लोग उसको विद स्टैंड कर जाएंगे और कुछ लोग जो है ना वो अपना फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचने का मतलब ये है कि वो तो कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता और ना हमने करना है। कुछ होंगे जो जो उसको विद स्टैंड करेंगे, एफर्ट करेंगे
करने और ना करने के दरमियान की स्टेज में जो है ना सबमिट कर देंगे, और कुछ होंगे जो वो मटीरियल जो मेरे लोड को अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए विदस्टैंड करेंगे विदाउट एनी चेंज। कुछ अब मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, मैंने एक लोड डाला आधी क्लास, तो वैसे स्ट्रेस में चली जाएगी। अब मैंने सिर्फ लोड दिया, मैंने स्ट्रेस नहीं दिया, स्ट्रेस आपके अंदर से आया। तो ये मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि लोड और स्ट्रेस में ये डिफरेंस है कि लोड एक्सटर्नल फोर्स है, स्ट्रेस जो है वो उस मटेरियल का रिस्पॉन्स है। ओके, हर फोर्स के थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आपने पढ़ा ही होगा कि एक ऑपोजिट फोर्स होती है, ठीक है, वो उस मटेरियल के या वो एक किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर से आती है स्ट्रेस। अब लोड मैंने सब पे सेम लिया है क्लास में, कुछ स्ट्रेस में गए हैं कुछ स्ट्रेस में नहीं गए, इसका मतलब है लोड का कसूर नहीं है, ठीक है, और ना स्ट्रेस जो है वो लोड की प्रॉपर्टी है या लोड की वजह से है, ये मटेरियल का रिस्पॉन्स है। तो जो ऑपोजिट रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रेस विद और वो इक्वल मैग्नीट्यूड पे होता है, वो स्ट्रेस होता है। इसको मैं आगे स्ट्रेस स्ट्रेन क्लास में जाके डिफाइन करूंगा आपको। मैंने सिर्फ एग्जांपल देनी थी कि स्ट्रेंथ में और सॉरी लोड में और स्ट्रेस में फर्क क्या है। सो द एबिलिटी टू रेजिस्ट द लोड विदाउट गोइंग टू द फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट पे जाने से पहले जो अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बाकी अगर वो फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच गया या शेप चेंज कर लिया या उसने या कोलैप्स कर गया, तो वो वीक मटेरियल है विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड। एग्जांपल इसकी मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये जो बिल्डिंग्स के अंदर बीम होते हैं, ठीक है, अगर ये एक लोड एक्सटर्नल लोड जो उनके ऊपर वेट आ रहा होता है बिल्डिंग का, वो बीम अगर 3 स्टोरीज के रिस्पेक्ट से डिज़ाइन हुआ है और अगर उसके ऊपर आप 6 मंजिला इमारत बनाएंगे तो इट विल कोलैप्स, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, हाँ, दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ कि वो 6 मंजिला बिल्डिंग को डिफाइन का लोड जो है ना वो अपने ऊपर ले सकता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ डिफाइन होगी विद रिस्पेक्ट टू योर लोड, कि आपने लोड कितना दिया है, उस लोड को वो विदस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि उस हर तरह का लोड बर्दाश्त करेगा, वो आपके डिफाइनिंग लोड के ऊपर अगर वो विदाउट परमानेंट चेंज या फ्रैक्चर की तरफ नहीं जाता तो वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। स्ट्रेंथ की जो कैटेगरीज हैं वो 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ कैटेगरीज हैं। अब ये स्ट्रेंथ की कैटेगरीज नहीं है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स हैं जिनकी बेस पे डिफाइन की गई है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ वो क्या है कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी टू रेजिस्ट द स्ट्रेचिंग लोड्स, ठीक है। बाकी वही चीज़ है कि फ्रैक्चर पे जाने से पहले विदाउट गोइंग टू टुवर्ड्स द फ्रैक्चर और डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पर मैं आपको मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, मैकेनिक्स का, ठीक है। सॉलिड और फ्लूइड की डेफिनेशन, अगर आपने फ्लूइड की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, फ्लूइड की डेफिनेशन अगर पढ़ी हुई है, ठीक है, वो बच्चों वाली डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि फ्लूइड इज अ मटेरियल that goes under a permanent distortion when the stress or when the load is applied। उसका क्या मतलब है? परमानेंट डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज फ्लूइड। फ्लूइड पे कोई भी लोड डालेंगे वो डिस्टॉर्शन आएगी उसके अंदर। ये डिफरेंस सॉलिड और अक्सर क्वेश्चन होता है सॉलिड और फ्लूइड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो फ्लूइड जो वो मटेरियल है जो डिस्टॉर्शन को विदस्टैंड, जो लोड को विदस्टैंड नहीं करता और डिस्टॉर्ट हो जाता है, जबकि सॉलिड क्या है, सॉलिड लोड को विदस्टैंड करता है और डिस्टॉर्ट नहीं होता, ठीक है, अप टू 1 पॉइंट। ये नहीं कह रहा कभी भी नहीं होता, लेकिन सॉलिड कभी भी फ्लूइड की तरह
स्टार्ट टू डिस्टॉर्ट और कंटिन्यू टू डिस्टॉर्ट नहीं रहता। डिस्टॉर्शन आएगी तो वो अपनी बिल्कुल कुछ शेप चेंज कर लेगा या स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, लेकिन लिक्विड जो है इट स्टार्ट्स टू डिस्टॉर्ट एंड कंटिन्यू टू डिस्टॉर्ट। वो फ्लो करना शुरू करता है तो फ्लो ही करता जाता है, वो अगर रेजिस्टेंस ना आए तो फ्लो ही करता जाए एक लोड के अगेंस्ट। सो जो जो टेक्निकल डिफरेंस है ना फ्लूइड्स और सॉलिड में, वो सिर्फ ये है कि एक लोड के अंदर सॉलिड डिस्टॉर्ट नहीं होते, लोड के अंदर फ्लूइड्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट होते हैं और डिस्टॉर्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक फ्लूइड अगर है उस पर आप लोड डालेंगे, वो फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है, वो डिस्टॉर्ट होगा और डिस्टॉर्शन को कंटिन्यू करेगा। अब द जनरेशन ऑफ डिस्टॉर्शन एंड द कंटिन्यूशन ऑफ द डिस्टॉर्शन इज बेसिकली फ्लो। फ्लो की भी अगर आप प्रैक्टिकल डेफिनेशन करें तो फ्लो ये है कि वो डिस्टॉर्ट हुआ है, इसकी वजह से वो वेलोसिटी प्रोफाइल्स बनती हैं आपकी। ठीक है, वो जो वेलोसिटी प्रोफाइल्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी है, वो वेलोसिटी
over partial change in temperature at constant volume is equal to CV. And similarly, right, can you all see the screen? Yes, sir. राइट तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था, हम स्टडी कर रहे थे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं भी चेंज आ रहा है और प्रेशर में जो भी चेंज आ रहा है वो हमें पता है। हमें पता है कि फाइनल टेम्परेचर के लिए लिखा, सेम इसी तरह हम इंटरनल एनर्जी के लिए भी लिख सकते हैं। एंड आई एम जस्ट गिविंग दिस असाइनमेंट टू यू कि आपने जिस तरह से ये एक्सप्रेशंस हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंटरनल एनर्जी के लिए ऐसी हैं जो इजीली डायरेक्टली